सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. Good morning, student. We are starting our new point of the first lesson, that is introduction of micro and macroeconomics. In the first lecture, we are complete our microeconomics, and this lecture we are starting our microeconomics. Introduction of microeconomics. See, the first microeconomics is derived from the micro. This word is derived from the Greek word, and the micro means, in the Greek language, micro means aggregates. Aggregates means total. We can say total of the all total of the national income, total saving, total investment, total expenditure. These are the examples of aggregates, जो variables, that is variables of the national income, total saving, total investment and total expenditure. Okay, the micro means what? Micro means Greek word. Micros is derived from the Greek word macros. A means aggregates, and that is national income, total saving, total investment and total expenditure. Microeconomics is a concern with the all the economic variable, that is national income, total saving, total investment and total expenditure. What is the In the 1933, Sir Ragnar Frisch coined the term microeconomics and macroeconomics. This term are derived from the Greek word micros and macros respectively. But this credit for the development of macro approach goes to the Lord Maynard Keynes. Okay, why this development credit goes to Lord Maynard Keynes? Because after the Great Depression in 1930, Great Depression के बाद Lord Maynard Keynes published his book, the theory of employment, interest and money. In this book, he analyzed the macro approach. उसने क्या किया? लॉर्ड मेनार्ड केन्स इज अ इकोनॉमिस्ट. इसने 1930 के बाद एक बुक पब्लिश किया था, थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. इस बुक में उन्होंने एक माइक्रो अप्रोच पब्लिश किया था. उसमें माइक्रो लेवल के जो प्रॉब्लम्स है उसको एनालाइज किया था. बिसाइड उसके बाद इसलिए आफ्टर दैट the development of approach goes to Lord Maynard Keynes. Because of this approach, very popular. This approach very popular as an important approach in economics. And beside the Keynes, Karl Marx, Wicksell, Walras, Irving Fisher are the other economists who have participated in development of microeconomics. Only Keynes, सिर्फ Keynes ही नहीं, इसमें जो डेवलपमेंट जो इकोनॉमी माइक्रो अप्रोच का किया था, सिर्फ इसमें जो केन्स है उसने ही नहीं किया था. तो प्लस इसमें कार्ल मार्क्स, विक्सेल, वॉलरस, आयरविन फिशर एंड अदर ऑफ द इकोनॉमिस्ट हु हैव पार्टिसिपेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. सिर्फ केन्स ने ही नहीं इसमें मैक्रो अप्रोच डेवलप नहीं किया था. तो उसके अलावा जो कार्ल मार्क्स है, विक्सेल, वॉलरस, आयरविन फिशर are the two economics to have participate in the development of macroeconomics. In the macroeconomics, we have already studied about the microeconomics. In this microeconomics, we have study of the individual things, individual units. Okay, and in this microeconomics we study consider as a national income, total saving, total investment, total expenditure. जैसे microeconomics में हम जो study करते हैं वो किसके individual level पे करते हैं, and macroeconomics में जो study है वो national income, total saving, total investment and total expenditure. मतलब जो aggregate level पे जो भी है उसका study यहाँ पे macroeconomics में किया जाता है. Next, our next point is the meaning of macroeconomics. What is the meaning of macroeconomics? Macroeconomics is a branch of economics which analyze the entire economy. It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rate, inflation, trade cycle, business fluctuations. This macroeconomics is the study of
aggregates. We already study about the macroeconomics. What is the macroeconomics? Macroeconomics with the analyze the entire economy. कोई एक study, individual unit का study macroeconomics में नहीं होता है, तो पूरे all जो entire economy है उस entire economy का study macroeconomics में किया जाता है. What is the variables of the macroeconomics? These are the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rate, fluctuation, trade cycle, business fluctuation, etc. These macroeconomics is the study of aggregates. These are the like a chain. What about the chain? Output, consumption, income, saving and investment. When your output is increases, what people do? People do more consumption. Why people do more consumption? Because they have more income. Why they have more income? When they have more income, what they do? They do saving and investment. So this is a like a chain. Output, consumption, income, saving and investment. Next, we have given here some definitions given by the some economists. Definition of my economists. First is a J.L. Hansen. What is a J.L. Hansen? J.L. Hansen in economics, what they say? Micro is that branch of economics which consider the relationship between large aggregate such the volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. वो क्या बोलते हैं कि ये ब्रांच ऐसा है कि जिसमें लार्ज एग्रीगेट्स जो है नेशनल लेवल के उसका सब स्टडी एनालाइज यहाँ पे किया जाता है. मीन्स मैक्रो इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा. इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, अगर किसी एम्प्लॉयमेंट का आपको सेविंग निकालना है तो आप उसका एम्प्लॉयमेंट का टोटल सेविंग निकालेंगे. टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है किसी इंडिविजुअल लेवल पे, इन्वेस्टमेंट नहीं, हम एग्रीगेट लेवल पे जो नेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट निकालना है तो नेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो कंट्री का है उसका एनालाइज यहाँ पे किया जाता है. उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स. सेकेंड डेफिनेशन गिवन बाय कार्ल शैपिरो. मैक्रोइकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. कैसा फंक्शन है इसका? एज अ होल लेवल पे जो इकोनॉमी का प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है, ये कार्ल शैपिरो ने बोला है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शन ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. मतलब जो पूरे इकोनॉमी है उस पूरे इकोनॉमी का क्या जाता है यहाँ पे एनालाइज या स्टडी किया जाता है. ये दो डेफिनेशन है. नेक्स्ट इन दिस लेक्चर इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप मीन्स व्हाट? स्कोप मीन्स स्टडी एरिया. मतलब किसी जो सब्जेक्ट है उसका स्टडी एरिया क्या है, उसमें कौन से जो टॉपिक्स है वो इंक्लूड रहते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सेकंड थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. थर्ड इज अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फोर्थ इज मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसके सब पॉइंट है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन और लास्ट में इसका ही सब पार्ट है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल. तो फर्स्ट इज अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. दिस द इनकम डिनोटेड मीन्स इसका जो मीनिंग है इनकम मीन्स किसी पर्सनल का इनकम नहीं. तो यहाँ पे नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम के क्या डिटरमिनेंट्स, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, व्हाई नेशनल इनकम इंक्रीजेस, व्हाई डिक्रीजेस, व्हाट फैक्टर आर इंक्लूड इन द नेशनल इनकम. दीज आर द all these include in a theory of income. Next is the employment. What is the employment level in our country? What is the problem? What is the why unemployment produced in our country? What is the reason of unemployment? All these things theory, all these things analyze in this theory of income and employment. Microeconomics also known as theory of income and employment and also known as aggregate economics. Macroeconomics को क्या बोला जाता है? theory of income and employment and also aggregate economics. ऐसा भी यहाँ पे इस macroeconomics को बोला जाता है. Next है theory of general price level and inflation. So what is the meaning of general price level? General price level is the average of goods and services currently being produced in the economy. एक ईयर में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका एवरेज लेवल यहाँ पे निकाला जाता है. इससे इसका रिलेशन होता है इन्फ्लेशन से. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन? जनरल प्राइस लेवल बढ़ने के बाद उसका इन्फ्लेशन पे क्या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाई अकर बिकॉज ऑफ जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज और डिक्रीजेस. सेकेंड थिंग्स है थ्योरी ऑफ इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो अंडर डेवलपमेंट में कंट्री है उनको जैसे दे आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन,
poverty, unemployment. These problems, what is the solution of this problem? Economic theory of growth and development help to that country to reduce the unemployment level, poverty, and how they growth and development to that particular country. मतलब जो theory of income इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या करती है, जैसे अंडर डेवलपमेंट में कंट्री है उस कंट्री में पॉवर्टी, इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे वो सॉल्व आउट करे उसको, और ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर कैसे बढ़े, इसका सब एनालाइज यहाँ पे किया जाता है. ये थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट है मैक्रो theory of distribution. What are the factor of distribution? That are factor of theory of distribution. Distribution means divide करना. The factor of production, that are land, labor, capital and interest. Okay, तो entrepreneur. That are the theory of distribution. जो national income है वो national income is divided among the factor of the प्रोडक्शन. मतलब जो फैक्टर नेशनल इनकम है वो नेशनल इनकम अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करना, उसको ही बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड फैक्टर प्राइसिंग. मतलब थ्योरी ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी भी कहा जाता है. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर है उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो उनका प्रॉफिट है वो कैसे डिवाइड हो, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना, रेंट कैसे डिटरमाइन करना, ये सब इसमें एनालाइज किया जाता है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है इसका ही सब पार्ट है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन. Theory of consumption function is related to the consumption and disposal income. मतलब किससे related है? Consumption function and disposal income. Disposal income it's also known as a personal income. मतलब theory of consumption function is related to the मतलब relationship between disposal income and कंजम्पशन. जो कंजम्पशन है और डिस्पोजल इनकम है मीन्स जो पर्सनल इनकम है वो पर्सनल इनकम के बीच में कैसा रिलेशन वो शो करता है, यहाँ पे एनालाइज करता है. समझो किसी के पास अनएक्सेप्टेड जो पैसा आता है वो क्या करता है, अगर पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वो क्या करता है, इकोनॉमी में ज़्यादा खर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन थ्योरी. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फंक्शन. थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. ये इसी थ्योरी का दो पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है. थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. अगर आप इकोनॉमी में ज़्यादा नेट आउटपुट का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो आपको आउटपुट भी उतना मिलता है. ये थ्योरी ये एनालाइज करता है. नेक्स्ट ट्रेड साइकिल ऑफ बिजनेस, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल. इसे ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ, इसको दूसरा नाम है ट्रेड साइकिल. इरेज कर. थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड साइकिल. दैट इज कॉल्ड, जैसे हमारे मतलब हैप्पीनेस और सैडनेस जैसे आता है तो बिजनेस साइकिल में अप्स एंड डाउन जो होते हैं या कंपनी में या कोई इंडस्ट्री में उसको ही बोलते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है. व्हाई अप्स एंड डाउन कम्स, हाउ डिक्रीजेस, हाउ इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस cycle. Next, the business cycle also known as the economic cycle or trade cycle. It is a downwards and upwards movement of gross domestic product around its long term and growth rate. जो बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है, ट्रेड साइकिल. इट इज डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स. मतलब जो बिजनेस में डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स आते हैं तो क्यों आते हैं उसका एनालाइज यहाँ पे इस थ्योरी में किया जाता है. यही सब पॉइंट्स आपको फीचर्स में भी देखने मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंस है उसमें भी है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज features of macroeconomics. What are the features of macroeconomics? Study of aggregates, income theory, general equilibrium analysis, interdependence, lumping method, growth model, general price level and policy oriented. See, first point is a study of aggregates. Study of aggregates, when we read this term, one thing comes in mind, that is aggregates means total. It is a concern with the aggregate concepts such as national income, national output, total saving, employment, general price level, business cycle, etc. जब हम aggregates का जब study करते हैं, analyze करते हैं तो जो aggregates है, aggregates कौन से हैं, national output, national employment, national price level, business cycle, etc.
नॉट अ इंडिविजुअल लेवल बट द एग्रीगेट लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एग्रीगेट्स लेवल पे स्टडी करते तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का हम इनकम नहीं स्टडी करते, तो पूरा नेशनल लेवल पे स्टडी करते, कोई पर्सनल आउटपुट नहीं। बिजनेस में जितना आउटपुट है, प्रोडक्शन है, उसका आउटपुट बोला जाता है, तो वो नेशनल आउटपुट, मतलब पूरे ईयर में नेशनल में कितना आउटपुट प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको बोलते हैं नेशनल आउटपुट। सेकेंड थिंग्स इज नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं नेशनल लेवल पे, उसको बोलते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट। जनरल प्राइस लेवल, वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द जनरल प्राइस लेवल, एंड नेक्स्ट इज अ बिजनेस साइकिल। ऑल दीज एग्रीगेट्स आर स्टडी इन द एंड एनालाइज इन द study of aggregates. Second point is the income theory. Already study about the income theory. Macroeconomics study the concept of national income. National income जो है वो national income कैसे काउंट होता है, which determines of the national income, how decreases, how increases, that is called the national theory. मतलब नेशनल इनकम काउंट करने में कैसे वो नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, वो सब इन नेशनल इनकम थ्योरी में काउंट करते हैं, एनालाइज किया जाता है। उसके बाद है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल, एनालाइज मीन्स स्टडी करना, रिसर्च करना। मैक्रो इकोनॉमी इज अ कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स एंड देयर इंटरडिपेंडेंस। जनरल जो बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट्स मीन्स हमने ऑलरेडी स्टडी अबाउट द एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मीन्स नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, दे आर इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड्स है, इसका एनालाइज जनरल इक्विलिब्रियम में निकाला जाता है। जनरल इक्विलिब्रियम में जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो पॉइंट कैसे निकाला जाता है, तो पहले जनरल इक्विलिब्रियम फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन वी स्टडी द सप्लाई डिमांड। तो डिमांड जो है वो एक पर्सनल लेवल पे हम डिमांड काउंट करते हैं। नेक्स्ट जब हम सप्लाई लेवल काउंट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो सप्लाई लेवल है किसी पर्सनल का सप्लाई काउंट करते हैं, उसके मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, उसका जब इंटरसेक्ट होता है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आता है। अभी एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरडिपेंड्स है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड, वाई डिमांड इज इंक्रीज, बिकॉज सप्लाई इज इंक्रीजेस, यू हैव मोर सप्लाई। वाई मोर सप्लाई, बिकॉज योर आउटपुट इज अ मोर। वाई प्रोडक्शन इज मतलब प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है, तो आउटपुट ज़्यादा इसलिए प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट, यू हैव मोर एम्प्लॉयमेंट। वाई मोर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट यू हैव इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। इनकम इंक्रीजेस, दैट इज वाई कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। कंजम्पशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज यू आर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। जनरल इक्विलिब्रियम में जो एग्रीगेट्स है वो एग्रीगेट्स कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसका स्टडी किया जाता है। थर्ड है इंटरडिपेंडेंस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। वी आर ऑलरेडी स्टडी अबाउट द दिस इज डिमांड सप्लाई। सेम इन्वेस्टमेंट, अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन क्या करेगा, पहले इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, बिकॉज दे हैव इनकम ज़्यादा है तो आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक, फाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड क्या है, लंपिंग मेथड इज अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक rather than its parts. We have two methods. In microeconomics we study about the slicing method, and in this macroeconomics we study about the lumping method. What is the meaning of lumping method? Lumping method is the study of whole economy rather than its part. See, microeconomics, when we study about the first part, that is called an individual level. So this one, when we study about the individual level, we study this one part and this one part individually. But when we study about the lumping method, in this lumping method we study about the whole, मतलब ये पूरा जो है उसका whole level पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और जो स्लाइसिंग मेथड है, स्लाइसिंग मेथड में हम एक एक पार्ट करके उसका जो स्टडी एनालाइज उसका किया जाता है, उसको ही बोलते हैं this like a slicing method, this is the lumping method. Next is a growth model, means lumping method और slicing method इसमें difference है. Next is a growth model. Growth model are used to studying economic development. For example, Mahalanobis growth model emphasizes on basic heavy industries, Herod Domer growth model and Kaldor
मॉडल, ठीक है। तो ग्रोथ मॉडल्स आर स्टडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए जो ग्रोथ मॉडल्स है वो ग्रोथ मॉडल का एनालाइज करके हम पूरे इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है महालनोबिस ग्रोथ मॉडल। महालनोबिस इज अ great statistician and he after the renovation of the accumulation formulating of the fourth 5 years plan. Fourth 5 years plan is starting from 1956 to 1961. Fourth 5 years plan is started from 1956 to 1961, मतलब 1956 और 1961 के बीच में सेकेंड 5 years plan स्टार्ट हो गया। सेकेंड 5 years plan स्टार्ट होने के बाद वी आर फेसिंग, आवर इकोनॉमी इज फेसिंग मैनी वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दैट टाइम they want to rapidly growth in our economy. That time Mahalanobis was the good friend and advisor of our late prime minister जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के ये महालनोबिस जो थे, पीसी महालनोबिस में प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये एक अच्छे फ्रेंड भी थे और वो एक ये जो 5 years का प्लान था, सेकेंड 5 years प्लान, इसका एक उनके वो प्लानिंग के मेंबर भी थे। तो इन्होंने क्या किया, he prepared a growth model to grow the development of economy. He says emphasize on the basic heavy industry. जो heavy industries है उसके ऊपर ज़्यादा अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। हाउ दे ग्रोथ हेवी इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ जो अगर हेवी इंडस्ट्री है तो हेवी इंडस्ट्रीज मीन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है उसको हेवी इंडस्ट्री बोला जाता है। अगर हेवी इंडस्ट्री में अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमी की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, बिकॉज दैट टाइम वी हैव लैक ऑफ द एक फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जब 1956 में 1947 को हमको अवर इंडिया गेट इंडिपेंडेंस ऑन 1947 और 1956 टू 1951 ये सेकेंड 5 years का प्लान था। तो 1956 में इंडियन इकोनॉमी हैज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। दैट टाइम आवर इकोनॉमी वाज अ क्लोज इकोनॉमी। 1991 में इंडियन इकोनॉमी इज अ ओपन इकोनॉमी, बट 1956 तक ये पूरा क्लोज इकोनॉमी था, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ पे नहीं हो रहा था। तो ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए he suggested that the growth of model emphasize on basic heavy industry. जो heavy industries है वो heavy industry में अगर ज़्यादा हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फ़ायदा उस ग्रोथ इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसा इन्होंने किया, क्योंकि जो मशीनरी है वो मशीनरी क्या है, गुड्स और मशीनरी किससे बनती है, आयरन और स्टील से ही बनती है। तो अगर वही मशीनरी अगर हमारे इंडियन कंट्री में इंडियन इकोनॉमी अगर प्रोड्यूस हो जाए तो गुड्स और सर्विसेज जो भी है वो हम हमारे कंट्रीज में ही प्रोड्यूस कर सकते, उसको ही बोलते हैं बेसिक हैवी इंडस्ट्री। ऐसे ही सेम मॉडल्स हेरोल्ड डॉमर ग्रोथ मॉडल और मॉडल कैल्डर और मॉडल्स ने दे दिया, इसको ही बोलते हैं ग्रोथ मॉडल्स। ऐसे जो ग्रोथ मॉडल्स है उसके थ्रू हम इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकते। सेकेंड है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जनरल प्राइस लेवल क्या है, जनरल प्राइस लेवल इज एवरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। मतलब एक 1 year में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका एक जनरल प्राइस लेवल निकाला जाता है। व्हाट इज impact of the general level on the inflation or deflation, why increases, why decreases, general price level, what is the inflation, what is the inflation, what is the deflation, ये सबका जो एनालाइज है जनरल प्राइस लेवल में किया जाता है। ये फीचर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लास्ट वन इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड। Policy oriented is suggested suitable economic policy to promote economic growth, generate employment, control inflation and depression, etc. पॉलिसी ओरिएंटेड मीन्स उस पॉलिसी जो है, पॉलिसी मीन्स टारगेट, कुछ टारगेट रखा जाता है कि जिससे ये जो इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सजेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। जैसे कोई सेकेंड 5 years का प्लान जो है उस प्लान में कुछ टारगेट दिए जाते हैं, उस टारगेट से वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल दीज इकोनॉमिक। समझो एग्रीकल्चर का कुछ हमको क्या करना है, ग्रोथ करना है, तो एग्रीकल्चर लेवल को क्या करती है, पूरा टारगेट देते कि एग्रीकल्चर लेवल में हमको 5 years के प्लान में पूरा डेवलपमेंट करना है। तो ये क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो कॉल्ड अ पॉलिसी ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स।
Next point is the importance of macroeconomics. Same feature, same point, repeat in this. Importance of macroeconomics. First point is the functioning of an economy. Second, economic fluctuation, national income, economic development, performance of an economy. Last, study of macroeconomics variables, and last is the level of employment. The first point is the functioning of economy. What is the function of economy means? किसी थिंग्स का फंक्शन कैसे चलता है, कैसे वो उसका फंक्शन कुछ जो कॉम्प्लेक्स लेवल में इकोनॉमी है, वो इस इकोनॉमी पूरे इंटायर इकोनॉमी का फंक्शन कैसे चलता है, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है. उसको बोलते हैं फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी. व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ फैन, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फैन, तो दे पास आउट द एयर फ्रॉम दिस, दैट इज कॉल्ड फंक्शन. तो पूरे इकोनॉमी का फंक्शन कैसे चलता है, कौन से बेस पे चलता है, वो दे एनालाइज इन दिस फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज अ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में बिजनेस में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, डाउनवर्ड्स अपवर्ड साइड्स, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन. थर्ड पॉइंट इज द नेशनल इनकम. वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के डिटरमिनेंट्स क्या है, कैसे वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, विच डिटरमिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, कौन से डिटरमिनेंट्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है, किसको बाहर किया जाता है, सब नेशनल इनकम में एनालाइज करते हैं. थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट मॉडल्स हमने देखे वो सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है. थर्ड इज द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी. परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी किसके बेस पे किया जाता है? परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड मेजर ऑन द नेशनल इनकम. जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम जो लास्ट ईयर कितना था, दिस ईयर करंट ईयर में कितना है, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी निकाला जाता है. मतलब जैसे हम 9th में कितने परसेंटेज थे, 10th में कितने परसेंटेज आए, ये सब एनालाइज करते हैं. वैसे परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी कैसे परफॉर्मेंस, मतलब जो एस्टिमेटेड मेजर क्या पकड़ा जाता है, वहाँ पे नेशनल इनकम को पकड़ा जाता है. लास्ट ईयर कितना था, अभी कितना है, कैसे बढ़ेगा वो, उसके ऊपर ये परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी मेजर्स किया जाता है. थर्ड इज अ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स. जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स ऑलरेडी डिस्कस, टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल. जो जनरल प्राइस लेवल है वो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है. लास्ट इज अ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी कंट्री में जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वाई दिस इज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे बढ़ेगा, इसका एनालाइज यहाँ पे इस पॉइंट में किया जाता है. दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. लास्ट पॉइंट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एट अ ग्लांस. मीन्स जो डिस्टिंक्शन बिटवीन में क्वेश्चन आता है वो सेम. फर्स्ट बेसिस ऑफ कंपेरिजन, मीनिंग, टूल्स, स्कोप, इंपॉर्टेंस, थ्योरी एंड एग्जाम्पल. First basis comparison is a meaning. Meaning microeconomics. What is the meaning of microeconomics? Microeconomics study the behavior of individual level of an economy. And what is the meaning of macroeconomics? The macroeconomics study the behavior of aggregates of economy as a whole. Second, इसके tools क्या है? What is the tools of basis comparison? Second is the individual demand, individual supply. What is the tools of macroeconomics? Aggregate demand and aggregate supply. थर्ड इज अ स्कोप. स्कोप मीन्स क्या, इसके स्टडी मैटर क्या है, स्टडी एरिया क्या है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी. थर्ड इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन, एक्सेट्रा. Second, economic fluctuation, macroeconomics, economics fluctuation, study of national income, economic development, etc. Last one is a theory, price theory. Macroeconomics also called price theory, and macroeconomics is also known as economic income and employment theory. Last one example, for example में individual income, individual output, and macroeconomics, national income and national